ایف ڈی اے بورڈ آف گورنر کے 8 ممبران ایف ڈی اے کے ماسٹر پلان کے حوالے سے میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ 21 تاریخ کو انہوں نے 2 دن بعد ہی میٹنگ کال کی، جس کا ہم نے بائیکاٹ کیا اور ان کو کہا کہ نہیں، ہم اس میں کسی صورت اس وقت تک شامل نہیں ہوں گے جب تک ہماری یہ ساری ڈیٹیلز ہمیں نہیں ملے گی۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے 27 تاریخ کو پھر میٹنگ کال کر دی، جس پر ہم نے خود ان کو سب نے ریٹن لکھ کر دیا کہ ہم 27 تاریخ کی میٹنگ میں شامل نہیں ہوں گے۔ ہماری چیزیں جب تک اویلیبل نہ ہوں، ہماری چیزیں جب تک اویلیبل نہیں ہوں گی، لازمی بات ہے، ہم نے ان کو یہ کہا تھا کہ جب تک ہماری اس اپلیکیشن میں درکار کی معلومات ہمیں فراہم نہیں کی جائیں گی تو ہم فیصلہ آباد کی قسمت کا فیصلہ صرف ان کے کہنوں کی بنیاد پر ہم نہیں کریں گے۔ جو یہ سارا گرین ایریا ہے، مجھے تو یہاں پہ گرین ایریا ہمیں تو نظر ہی نہیں آ رہا، یہ سارا انہوں نے تقریباً پورے شہر کو براؤن کر دیا ہے۔ یہ صرف اور صرف یہاں پہ کالونیاں ڈیولپ ہوں گی، اور تو یہاں پہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہم نے اپنے تحفظات ان کو بتائے تھے، ہماری ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس کو ریویو کیا جائے۔ ہمارے میٹنگ میں نہ ہونے کے باوجود انہوں نے اس کو پاس کر دیا ہے، جبکہ ہم لوگ ان سے صرف ٹائم مانگ رہے تھے، ان کو تھوڑی سی جو ہے وہ چینجنگ کہہ رہے تھے، اس میں کریں، چیزوں کو سیٹل کریں، جو ایریا براؤن ہے اس کو براؤن رہنے دیں۔ یہ ہمارے پاس پرانا نقشہ پڑا ہے، اگلا نئے نقشے میں انہوں نے یہ سارا یہ بھی اس کو اپنا گرین کو براؤن کر دیا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ جو ہے وہ پریس کانفرنس بھرپور آپ کے سامنے کریں گے۔ ہم نے صرف آپ یہ بتانا ہے کہ جو یہ نقشہ پاس ہوا ہے، اس میں ہماری گورننگ باڈی 5 سال کی تاخیر سے منظور ہونے والے ماسٹر پلان کے مسودے پر ایک بار پھر اعتراضات۔ 27 دسمبر کو 21 میں سے 10 ممبران نے شرکت کر کے پلان کا مسودہ منظور کیا۔ اجلاس میں شامل نہ ہونے والے دیگر 11 میں سے 8 ممبران کا تحفظات کا اظہار، ہائی کورٹ جانے کا اعلان کر دیا۔ ممبران ایف ڈی اے بورڈ آف گورنرز کی ماسٹر پلان کے حوالے سے میڈیا سے گفتگو۔ وائس چیئرمین واسا شیخ شاہد جاوید، وائس چیئرمین ایف ڈی اے کلیم اللہ کموکھا موجود تھے۔ ٹیکنیکل ایکسپرٹ جاوید شریف، یاسر انور بھی موجود تھے۔ ممبران بی او جی عادل پرویز اور فردوس رائے شریک نہ ہوئے۔ جاوید شریف کا کہنا تھا کہ ہم نے ایف ڈی اے میٹنگ کا بائیکاٹ کیا، ہم فیصلہ آباد کی قسمت کا فیصلہ ان کے فیصلوں پر نہیں چھوڑیں گے۔ وائس چیئرمین ایف ڈی اے کلیم اللہ کموکھا کا کہنا تھا کہ ہم نے اپنے تحفظات ایف ڈی اے کو بتائے تھے۔ آپ کو بتائیں، جنگ کے باسیوں کے لیے بڑی خبر، پنجاب کابینہ نے شاہ جیونا کو تحصیل کا درجہ دینے کی باقاعدہ منظوری دے دی۔ جنگ کے باسیوں کے لیے بڑی خبر، پنجاب کابینہ نے شاہ جیونا کو تحصیل کا درجہ دینے کی منظوری دے دی۔ منظوری کے بعد تحصیل شاہ جیونا کو 5ویں تحصیل کا درجہ مل گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی زیر صدارت ہونے والے پنجاب کابینہ کے اجلاس میں شاہ جیونا کو تحصیل کا درجہ دینے کی باقاعدہ منظوری دی گئی۔ شاہ جیونا کو تحصیل کا درجہ ملنے کے بعد ضلع جنگ کی تحصیلوں کی تعداد 4 سے بڑھ کر 5 ہو گئی۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے تحصیل بننے کے لیے پیپر ورک کا عمل مکمل کر لیا گیا تھا۔ چیف سیکرٹری پنجاب کی ہدایت پر ضلع انتظامیہ نے تحصیل شاہ جیونا میں نئے مجوزہ سرکاری اداروں اور ان کی سیٹوں کا تخمینہ لگایا گیا۔ تنخواہوں کی ادائیگی اور دفاتر کی تشکیل کے لیے ہونے والے اخراجات کا تخمینہ بھی حکومت پنجاب کو بھجوایا گیا۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق پنجاب کابینہ سے منظوری ملنے کے بعد نئی تحصیل میں انتظامی امور پر کام تیزی کے ساتھ شروع کیا جائے گا۔ پنجاب کابینہ کا 8واں اجلاس، سوشل پروٹیکشن پالیسی کی منظوری۔ فیصل آباد میں 189 کنال جرنلسٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کے نام منتقل کرنے اور 25 کروڑ گرانٹ کی منظوری دے دی گئی۔ آپ کو بتاتے چلیں، پنجاب کابینہ کا 8واں اجلاس، سوشل پروٹیکشن پالیسی کی منظوری۔ فیصل آباد میں 189 کنال جرنلسٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کے نام منتقل کرنے اور 25 کروڑ گرانٹ کی منظوری دے دی گئی۔ قومی شاہراہوں اور موٹر وے پر دھند کے بادل چھا گئے، شہریوں کو سفر جاری رکھنے میں مشکلات کا سامنا۔ موٹر وے M3 کو درخانہ سے فیض پور تک اور M4 کو گوجرا سے عبدالحکیم تک ہر طرح کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ موٹر وے پولیس کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت۔ آپ کو بتاتے چلیں، دھند کے حوالے سے قومی شاہراہ اور موٹر وے پر دھند کے بادل چھا گئے، شہریوں کو سفر جاری رکھنے میں مشکلات کا سامنا۔ بات کریں گے عثمان حیدر سے۔ عثمان، بتائیے گا موٹر وے کے حوالے سے۔ جی بالکل، قومی شاہراہوں اور موٹر وے پہ دھند کے بادل ایک بار پھر
से छा गए हैं। अलबत्ता सुबह बारिश हुई और बारिश के बाद जो है वो ये ख्याल किया जा रहा था कि अब जो है वो बादल धुंध के नहीं बनेंगे। अलबत्ता आज शाम ढलते ही जो है वो बादल बने हैं और बादल जो है वो मोटरवे पे आ चुके हैं, कौमी शाहराहों को अपनी लपेट में ले लिया है, जिसके बाइस मोटरवे M3 को फैजपुर से दरखाना तक हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि मोटरवे M4 को गोजरा से अब्दुल हकीम तक हर तरह की ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया है, जिसके बाइस मोटरवे इंटरचेंजेस जो है उन पे गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। शहरियों को अपनी मंजिल तक पहुंचना है लेकिन धुंध उनके सफर में हायल हो चुकी है। इस हवाले से मोटरवे तर्जमान के कहना है कि जो ही हद निगाह बेहतर होगी तो यहाँ से शहरियों को जो है वो काफिलों की सूरत में रवाना कर दिया जाएगा। अलबत्ता ताहाल जो है वो सूरत हाल हद निगाह की जो है वो कम है, जिसके बायस जो है वो तमाम तर इंटरचेंजेस को बंद किया गया है और शहरियों को जो है वो सफर करने से गुरेज रहने की हिदायत की गई है। इस हवाले से मोटरवे पुलिस का ये भी कहना है कि मोटरवे पर सफर करने के आगाज से पहले जो है वो मोटरवे की मुतारिफ करदा हमसफर ऐप से मालूमात ली जा सकती है। कौमी शाहराहों या मोटरवे पर सफर के दौरान मोटरवे पुलिस की हेल्पलाइन 130 पे भी राब्ता किया जा सकता है। जी, हमसफर ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं। उस्मान हैदर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। एनर्जी बहरान ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए मुश्किलात पैदा कर दी। सर्दी की शिद्दत में इजाफे पर सुई गैस लोड शेडिंग की वजह से मुतबादिल ईंधन इस्तेमाल करना सनतकारों के लिए परेशानी का सबब बनने लगा। देखिए इस रिपोर्ट में। एनर्जी बहरान ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को तबाही के दाने पर पहुंचा दिया। सनतकारों ने सुई गैस की लोड शेडिंग बढ़ने से परेशानी का इजहार किया। गैस की लोड शेडिंग की वजह से मुतबादिल ईंधन इस्तेमाल होने से पैदावारी लागत बढ़ती जा रही है, जिससे इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है। हमारा मेन रॉ मटेरियल गैस होती है, जिससे हम बॉयलर अपने चलाते हैं। वो ना होने की वजह से हमें अदर फ्यूल पे जाना पड़ता है। अदर फ्यूल में मॉइस्चर ज़्यादा होती है, उसके साथ फिर जब वो हम जलाते हैं तो धुआं बनता है। इसमें हमारे एनवायरनमेंट का भी इश्यूज आ जाते हैं। इसके साथ साथ हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हम मैच नहीं कर पा रहे अपनी जो भी अपने बायर को देने के लिए। सनतकारों का कहना है कि इंडस्ट्री बहरान की वजह से कारोबारी तबका दिन ब दिन परेशानी का शिकार हो रहा है। गैस की जगह कोयला और दीगर ईंधन इस्तेमाल होने से इंडस्ट्री को चलाना महंगा पड़ रहा है और लोगों की खूब से खरीद मुतासर होने से माल आगे फरोख्त नहीं होता। कोल जो है पिछले दिनों जब सैलाब आया हुआ था तो उसकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हुई और उस वजह से हमारे कारोबार जो है वो अगर 50% इंडस्ट्री पहले चल रही तो उस वक्त सिर्फ 20 के करीब रह गई थी, बाकी बंद हो गई थी। वो अब सैलाब के बाद सूरत हाल बेहतर हुई है, लेकिन वैसे मैं थोड़ा ऐसा इत्फाक नहीं करता कि 50% बंद है। 70% इंडस्ट्री हमारी और लूमे पावर लूम बंद है इस वक्त। सनतकारों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत एनर्जी बहरान पर काबू पाए और इंडस्ट्री को रिलीफ दिया जाए। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। साल 2022 में फैसलाबाद शहर की लोकल इंडस्ट्री को क्या मुश्किलात रहीं, क्या खोया क्या पाया, आने वाले साल से लोकल इंडस्ट्री मालिकान की क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं, जानते हैं फजील अहमद की रिपोर्ट में। 2022 इंडस्ट्री के लिए मुश्किलात का साल रहा। रवां साल पावर लूम सेक्टर तबाही के दहाने पर पहुंच गया। चेयरमैन काउंसिल ऑफ पावर लूम ऑनर्स एसोसिएशन वहीद खालिक रामी कहते हैं कि 6 साल के बाद पावर लूम सेक्टर में खुशहाली आई, मगर इस साल फिर पावर लूमें कबाड़ में बिकना शुरू हो गयी। उम्मीद है नए साल में हुकूमती इक़दामात से बेहतरी आएगी। वो फैक्ट्रियाँ जो चल रही थी वो बंद होना शुरू हो गई और लूम्स जो है 6 साल के बाद दोबारा स्क्रैप में बिकना शुरू हो गई हैं। यान जो है वो महंगा हो गया। पाकिस्तान की कपास जो है वो 60 लाख बेल्स के ऊपर ही रह गई। जो इतनी मायूसियाँ हुई हैं कि इसके बाद फिर सैलाब ने रही से कसर तोड़ जो है वो पूरी कर दी। ताजरों ने नए साल में तेल की कीमतें कम करने का मुतालबा किया है। कहते हैं कि इस वक्त आलमी सतह पर पेट्रोल की कीमत $73 फी बैरल है। साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री राना सिकंदर आजम ने कहा कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत ₹100 फी लीटर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नए साल में पेट्रोल की कीमतों में वाज़े कमी की जाए। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से महंगाई भी बढ़ती है। 2022 का जो साल था वो कारोबारी लिहाज से बहुत मैं समझता हूँ कि इन्हतात पजीरी का साल था, लेकिन अल्लाह ताला से बड़ी उम्मीद है कि 2023 जो है वो इस पाकिस्तान के लिए, कारोबारी लोगों के लिए और तमाम पाकिस्तानी के लिए खुशियों का महवर होगा। कारोबारी तबके की जानिब से आने वाले साल में हुकूमत से रिलीफ की उम्मीद की जा रही है ताकि इंडस्ट्री का पहिया चल सके। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर शेराज भट्ट के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद।
चिन्योट में बिजनेस कम्युनिटी ने साल 2022 को कारोबारी लिहाज से खसारे का साल करार दे दिया। कहते हैं सियासी अदम इस्तेहकाम, माशी सूरत हाल के बायस कारोबार ठप होकर रह गए हैं। देखिए वकार घुमन की रिपोर्ट में। जिला चिन्योट फर्नीचर इंडस्ट्री की वजह से दुनिया भर में अपनी पहचान रखता है। जिला में हजारों छोटे बड़े लकड़ी के कारखाने मौजूद हैं। बाजारों में मुख्तलिफ अनवाओ इकसाम की दुकानें भी मौजूद हैं, जहां हजारों अफराद का रोजगार वाबस्ता है। अंजुमन ताजरान जिला चिन्योट के सदर हाजी मोहम्मद जमील फहरी का कहना था कि साल 2022 ताजरों के लिए परेशानी का साल रहा। ठेले वाले से लेकर इंडस्ट्री वाले तक सब मुश्किल में रहे। इंतहाई परेशानी का साल रहा है, इसलिए कि लोगों के पास पैसे ही नहीं है, लोगों के पास वो हिम्मत ही नहीं है खरीदारी की। एक छोटे से दुकानदार और ठेले वाले से लेके और एक इंडस्ट्री तक सब लोग परेशान हैं। सदर चिन्योट ईवान संतो तजारत दानिश नईम फहरी का कहना था कि सियासी गैर यकीनी सूरत हाल और मुआशी अदम इस्तेहकाम की वजह से फर्नीचर इंडस्ट्री भी साल 2022 में बहरान का शिकार रही। साल 2022 फर्नीचर इंडस्ट्री और पूरे पाकिस्तान की ताजर कम्युनिटी के लिए इंतहाई मुश्किल साल गुजरा है। इसमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। मैं समझता हूँ कि इसकी जो बुनियादी वजह है गैर यकीनी सियासी सूरत हाल की वजह से हुआ है। साल 2022 आम आदमी के लिए भी बदतरीन महंगाई की वजह से मुश्किल का साल रहा, जो इस उम्मीद पर जी रहे हैं कि शायद आने वाला साल कोई बेहतरी की उम्मीद लाए। कैमरामैन अलीजेब के साथ वकार गुमन, सिटी 41 चिन्योट। जंग में अजीम सूफी हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीबात का आगाज, मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद जारी। बरसगीर पाक हिंद की अजीम रूहानी शख्सियत हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का 342वीं उर्स की तकरीबात का आगाज सालाना खत्म पाक से हुआ। मुल्क के तूल अर्ज से ज़ायरीन की जानिब से दरबार पर हाजिरी दी गई और इज़हार अकीदत किया गया कि तेरी आला है शान बाहू सुल्तान बाहू। सफर करके आए हैं आप लोग? चकवाल से। किस सिलसिले में आए हैं आप यहाँ पे? सलाम करने के लिए। कितने साल हो गए हैं आपको यहाँ पे आते हुए? 15 से 20 साल। सरबराह जमात सालिहीन साहबजादा खालिद सुल्तान ने दरबार पर हाजिरी दी। 1400 चादरें चढ़ाई और मजार बाहू पर 15 मन से जायद फूल निछावर किए गए। उन्होंने कहा कि हज़रत सुल्तान बाहू ने हमेशा प्यार, मोहब्बत और अमन का दर्स दिया। आपने हमेशा लोगों को आजिज़ी और इंकसारी का दर्स दिया है। हुजूर सुल्तान आरफीन सुल्तान बाहू की जो जिंदगी थी वो आजिज़ी से इबारत थी और आपने सारी लाइफ अल्लाह की इबादत की, जिक्र इलाही में मशगूल रहे। ज़ायरीन ने मज़ार से मलिका बेरी के दरख्त तले मनते भी मांगी। ज़ायरीन ने बताया कि बे औलाद अफराद औलाद की नेमत से मुस्तफ़ीद होते हैं। क्या क्या दुआएं मांगी गई हैं यहाँ पे? हाजिरी के लिए आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी दुआ मांगी है यहाँ पे पूरी हुई है। मेरे मुर्शद सरकार का दायरा है, ये हर चीज़ यहाँ से मिलती है। ज़ायरीन के लिए लंगर का वसी इंतजाम किया गया, जबकि दरबार से मुतसिल जगह पर स्टॉल्स लगाए गए, जिसे तबरकात और तोहफे तहाइफ भी खरीदने का अमल जारी रहा। जी हम आए हैं जिला अटक हसन अब्दाल तहसील हसन अब्दाल से। हम 30-35 साल से इधर आ रहे हैं और बस दिली सुकून मिलता है इधर। हज़रत सुल्तान बाहू की उर्स की तकरीबात नमाज जुमा तक जारी रहेंगी। कैमरामैन नईम अरबाब और अमार यासिर के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 जंग। आपको बताएं, हुकूमत का 1 जनवरी से यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी को 2 हिस्सों में तकसीम करने का फैसला सामने आया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर आम सारिफीन के लिए अशिया की कीमतों में इजाफे का फैसला, आम सारिफीन के लिए घी 75 रुपये महंगा करने का फैसला, आम सारिफीन के लिए चीनी 19 रुपये फी किलो महंगी करने का फैसला, यूटिलिटी स्टोर्स पर आम सारिफीन के लिए आटा 24 रुपये 80 पैसे फी किलो महंगा करने का फैसला, आम सारिफीन को चीनी माहाना 5 किलो की बजाय 3 किलो दी जाएगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुस्तहिक अफराद को यूटिलिटी स्टोर्स पर माहाना 5 किलो चीनी मिलेगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुस्तहिक अफराद के लिए घी, चीनी और आटे के नर्ख बरकरार। BISP के मुस्तहिक अफराद के लिए चीनी 70 रुपये और घी 300 रुपये किलो में मिलेगा। छुट्टियां ही छुट्टियां, तलबा की मौजें लग गईं। पंजाब में मौसम सरमा की तातीलात में इजाफा हो गया। स्मोक के बायस तालीमी इदारे मजीद 7 रोज के लिए बंद। महकमा स्कूल्स और सेक्रेटरी हायर एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आपको बताते चलें, छुट्टियां ही छुट्टियां, तलबा की मौजें लग गईं। पंजाब भर में मौसम सरमा की तातीलात में इजाफा। स्मोक के बायस तालीमी इदारे मजीद 7 रोज के लिए बंद कर दिए गए।
सोशल मीडिया पर फैसलाबाद में महाना 50,000 बच्चों की पैदाइश से मुतालिक गर्दिश करती खबरों पर महकमा सेहत का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। फैसलाबाद में महाना 19 से 20,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, जिसमें दीगर अजलास से आई खवातीन भी शामिल हैं। देखिए आज़ादार हुसैन की इस रिपोर्ट में। महकमा सेहत इंतजामिया के मुताबिक जिला भर में माहाना 19 से 20,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। इस सिलसिला में डॉक्टर साकिब मुनीर का कहना है कि 19 से 20,000 की तादाद में दीगर इस्लाह से आई खवातीन भी शामिल हैं, क्योंकि प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में पैदा होने वाले बच्चों को BCG वैक्सीन लगाई जा रही है। इसलिए BCG वैक्सीन के जरिए अदादो शुमार हासिल किए गए हैं। लोकल गवर्नमेंट ने एक एप्लीकेशन बनाई है CBVS के नाम से, जिस पे जो है वो अभी बच्चों का जो है वो इंदराज किया जा रहा है यूनियन काउंसिल। सोशल मीडिया पर बच्चों की पैदाइश से मुतल्लिक अफवाहों के बाद DG हेल्थ ऑफिस से राब्ता किया गया। बाद अज़ान लोकल गवर्नमेंट से राब्ता किया गया तो मालूम हुआ कि उन्होंने CVRS एक ऐप मुतारिफ करवाई है और लोकल गवर्नमेंट ने बच्चों की पैदाइश से मुतल्लिक अंदराज के लिए मुहिम चलाई तो वालिदैन ने बड़े बच्चों की भी पैदाइश का अंदराज ताखीर से करवाया। फैसलाबाद में 50,000 जो बच्चे हैं वो 1 महीने में पैदा हुए हैं। फर्दर मैं ऐड करूंगा कि जो हमारा BCG का फैसलाबाद का टारगेट है, तो BCG का बेसिकली जो हम रेट काउंट करते हैं वो हमारा 19,500 के पास। उनका मजीद कहना है कि बच्चों से मुतल्लिक रिकॉर्ड ऑनलाइन होने के बाद सही आदादो शुमार जारी हो सकेंगे। कैमरामैन कमर बूटा के साथ आज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। महकमा सेहत का 1 जनवरी से 15 रोज़ा कोरोना वैक्सीन मुहिम मनाने का फैसला। तहसील समंदरी, जड़ावाला और तहसील सदर पर फोकस किया जाएगा। महकमा सेहत ने 2 लाख से जायद डोज मांग ली। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर साकिब मुनीर कहते हैं कि 15 रोज़ा कोरोना वैक्सीन मुहिम के दौरान तहसील समंदरी, जड़ावाला और तहसील सदर पर फोकस किया जाएगा। मुहिम के दौरान कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक और बूस्टर डोज लगाई जाएंगी। इसके अलावा फाइजर वैक्सीन तमाम सेंटर्स पर मौजूद हैं। शहरी इलाके मुकम्मल कवर कर लिए गए हैं, इसलिए दही आबादी पर ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी। आपको बताएं, DHQ अस्पताल झंग में डायलिसिस किट्स की फ्राहमी का अमल शुरू कर दिया गया। देखिए इस रिपोर्ट में। गुर्दों के अमराज में मुब्तला मरीजों के लिए अच्छी खबर। DHQ अस्पताल झंग में डायलिसिस किट्स की फ्राहमी का अमल शुरू कर दिया गया। प्रोजेक्ट के तहत 10,500 किट्स फ्राहम की जाएंगी। डायलिसिस किट्स की फ्राहमी पर 1,39,54,000 रुपए के अखराजात आएंगे। किट्स में जर्मनी से दरामद शुदा डायलर्स, चाइना से दरामद शुदा ब्लड लाइन्स और थाईलैंड से दरामद शुदा AV निडल सेट शामिल हैं। डायलिसिस डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी को रवा माली साल में मिलने वाले फंड्स के तहत खरीदी गई हैं, जिनकी फ्राहमी 90 रोज में कर दी जाएगी। उधर फैसलाबाद में माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम का रूरल हेल्थ सेंटर में गायनाकोलॉजिस्ट, माहिर अमराज पचकान, इनक्यूबेटर और वेंटिलेटर की सहूलत फ्राहम करने का फैसला। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम डॉक्टर खादिम हुसैन का कहना था कि मॉडल प्लस रूरल हेल्थ सेंटर्स पर माँ बच्चे को बेहतरीन इलाज से मुतालिक सहूलियात मुयस्सर आ सकेंगी। ऐसे में जिला भर के 16 रूरल हेल्थ सेंटर्स में से 6 रूरल हेल्थ सेंटर्स की समरी हुकूमत को भिजवाई। इसमें सुबह की शिफ्ट में माहिर अमराज पचकान, गायनाकोलॉजिस्ट मौजूद होंगी। शाम और रात के औकात में दीगर डॉक्टर ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देंगे। जो मॉडल प्लस रिकमेंड होने के बाद उधर एक गायनाकोलॉजिस्ट FCPS, पीडियाट्रिशियन FCPS भी स्पेशल तौर पर रखे जाएंगे और साथ में हर RIC पर वेंटिलेटर, इंक्यूबेटर और जो जदीद आलात है वो भी दे दिए जाएंगे और भी फैसिलिटीज काफ़ी होंगी जो मॉडल प्लस के तौर पर उधर मुहैया की जाएगी। फैसलाबाद के जनरल अस्पताल शहीद कॉलोनी में हड्डी पट्टा जोड़ के अमराज में मुब्तला मरीजों के इलाज मुआवजे की सहूलत मुयस्सर हो सकेगी। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ ने ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर तैनात कर दिया। मेडिकल सुपरिटेंडेंट जनरल अस्पताल हसीब शहीद कॉलोनी डॉक्टर जाफिर हुसैन का कहना था कि मार्च 2023 तक अस्पताल मुकम्मल फाल होने से मरीजों को ऑपरेशन की सहूलत भी मुयस्सर आ सकेगी। उनका मजीद कहना था कि फिलहाल इब्तदाई तौर पर मरीज शुबा बैरूनी मरीजा में मुस्तफीद हो सकेंगे, क्योंकि ऑर्थोपेडिक सर्जन की तैनाती न होने से हड्डी पट्टा जोड़ के अमराज में मुब्तला मरीजों को मुश्किलात का सामना था।